आंध्र प्रदेश में पॉलिसेट 2021 एंट्रेंस के नतायज जारी किए गए। टेक्निकल एजुकेशन कमिश्नर पी भास्कर के हाथों नतायज जारी किए गए। विजयवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कमिश्नर पी भास्कर ने बताया कि ऑनलाइन तर्ज पर दाखिले होंगे। 1 अक्टूबर ता 6 अक्टूबर फीस दाखिल करना होगा। 3 अक्टूबर ता 7 अक्टूबर असनादात की जांच होगी। 11 अक्टूबर को अलॉटमेंट होगा और 18 अक्टूबर से क्लासेस का आगाज होगा। रियासत भर में जुमला 257 कॉलेजेस हैं, जिनमें 70,000 से ज्यादा तलबा का दाखिला होगा। Today we are issuing notification for the admission into polytechnic colleges. There are 84 government polytechnics and 2 aided polytechnics. Put together 86 under the purview of government, and then there are 171 polytechnics under private management. As far as the details of the seats are concerned, we have 17,000 seats under government polytechnics and 53,152 under private management. 68,137 candidates have appeared for the examination, PolySet, and 64,187 candidates have been qualified for admission. So I request all the qualified students to apply for admissions into polytechnic colleges as per your choice, either in the government polytechnic or in the private polytechnic. In order to provide help in the process of certificate verification, 31 helpline centers have been set up across the state, covering 13 districts. Students can take, the services of helpline center from 1st to 6th October. The process of certificate verification in the helplines will be started from 3rd October to 7th October. Options can be exercised by the students from 3rd October to 8th October. And finally, one day is given to change or alter their options, that is on 9th. On 11th, seats will be allotted to the applicant. आगे बढ़ते आंध्र प्रदेश तेलुगु एकेडमी की जानिब से मुरतब करदा इंटरमीडिएट किताब का रियासती वजीर के हाथों रस्म इजरा अमल में आया। इस मौके पर तेलुगु एकेडमी के चेयरपर्सन लक्ष्मी पार्वती व दीगर भी मौजूद थे। रियासत की तकसीम के बाद पहली मरतबा आंध्र प्रदेश तेलुगु एकेडमी की जानिब से इंटरमीडिएट की किताब मुरतब की गई है, जो उर्दू, तेलुगु और अंग्रेजी जबान में मौजूद है। वजीर तालीम ए सुरेश ने बताया कि तेलुगु देशम हुकूमत की तेलुगु जबान के साथ सौतेले सलूक की वजह से तेलुगु एकेडमी आंध्र प्रदेश को अलॉट नहीं की गई, जिसकी वजह से किताबों को मुरतब करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने नई एकेडमी कायम करते हुए किताबों को मुरतब करने का अमल शुरू किया है। बहुत जल्द तमाम किताबें तेलुगु एकेडमी की जानिब से मुरतब की जाएंगी। Government had made no efforts in bringing out or in taking out this Telugu Academy to Andhra Pradesh. Today we have come out with the first edition of the intermediate textbooks, both in Telugu medium, English medium and Urdu medium, and nearly 57 titles, both pertaining to first year and second year, are printed. And in due course we will be coming out with more books on literature, on degree courses, and also on some monographs. It is very pertinent to mention here that Telugu Academy also would be going to print books pertaining to competitive examinations. So finally, one big step has been made towards stabilizing this Telugu Academy. And it is very important to mention here that Honorable Supreme Court also has passed favorable orders in favor of bifurcation of the properties and the staff of this Telugu Academy between Telangana and Andhra Pradesh. So with that, very soon we will be getting the funds and also the faculty from Telangana, and this full-fledged Telugu and Sanskrit Academy would start functioning from the Tirupati Center as directed by Honorable Chief Minister.
वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर विजयवाड़ा में महकमा सेहत के कमिश्नर के दफ्तर में एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस दौरान अमराज कल्ब पर माहिरीन ने रोशनी डाली। महकमा सेहत के कमिश्नर भास्कर ने बताया कि बेहतर ग़िज़ा का इस्तेमाल न होने, सिगरेट और शराब के इस्तेमाल से कल्ब की बीमारियां पैदा हो रही हैं। उन्होंने अमराज कल्ब से बचाव के लिए शऊर बेदार करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने इस मर्ज में मुब्तला अफराद से स्कैनिंग के बाद माहिरीन कल्ब से इलाज करवाने की आवाम से अपील की। करनूल गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर तकरीब मुनक्किद हुई। इस दौरान अस्पताल के नर्सेज व दीगर मरीजों की तिब्बी जांच की गई और अमराज कल्ब से बचाव के एहतियाती तदाबीर पर माहिरीन ने तफसीली रोशनी डाली। डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि अमराज कल्ब से बचने के लिए सिगरेट नोशी, शराब नोशी से परहेज करें। उन्होंने रोजाना वर्जिश करने का आवाम को मशवरा दिया। Today we are doing a screening camp for all the nursing professional. So out of 80 to 100 people, almost 20 to 30% of the population, they are having a hypertension, obesity and diabetes problem. They should be aware. Particularly women they have to be very careful above 40 years because in post-menopausal age group, the estrogen hormone will come down and it will affect the heart diseases. So for regular exercise and good diet, taking good dietary habits and avoiding smoking, particularly in males, that will prevent 80% of the cardiac problems because 17.6 million deaths have been taking place in the worldwide because of the heart attacks and brain attacks, and these 80% can be preventable. So, and most of them they are living in the developing countries like India, Pakistan, Bangladesh, and the World Heart Federation started this World Heart Day from the year 99 to 2000 onwards and celebrating the World Heart Day more than 120. आगे बढ़ते हैं। अल अजहर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी बाहरपेट अदोनी के ज़रिए एहतमाम मदरसा आसिया लिलबनात में जगन अन्ना विद्या कानूका किट्स तकसीम किए गए। मदरसे के बच्चों में किताबों के अलावा यूनिफॉर्म्स, बैग और दीगर तालीमी मवाद की तकसीम अमल में लाई गई। तालीमी किट्स की तकसीम के प्रोग्राम में स्कूल सुपरवाइजर TJ उबैदुर्रहमान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मदरसे के नाजिम, असातिज़ा व दीगर भी मौजूद रहे। CM साहब, जगन साहब की तरफ से ख़ास तवज्जो दी जा रही है तालीम के लिए और बच्चों को कॉर्पोरेट स्कूल्स मतलब कॉन्वेंट्स जो हाईली पैसे वालों के कॉन्वेंट है, उनके बराबर हमारे बच्चे मदरसे में भी आए। उसके लिए गवर्नमेंट यूनिफॉर्म्स दिए हैं, बुक्स दिए हैं और फ्री खाने का स्कीम रखी है। चिक्कीस, अंडे, ये सब आप लोगों की सहूलत के वास्ते रखे। सिर्फ किताबें दी जा रही हैं, जगराना किट्स दी जा रही है और ड्राई रेशन यानी तो दोपहर का खाना। अब तो लॉकडाउन की वजह से ड्राई रेशन दिया जा रहा है। मैं वालिदैन से गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को मदरसे से ठीक भेजें और जो भी होमवर्क है घर में क्या कर रहे हैं क्या नहीं देखो ज़रा अच्छी तरह से। बच्चों को पाक साफ़ रखिए, मदरसों को वक्त पर भेजिए और मदरसे को 4 चांद लगाइए। इंशाल्लाह मेरे तरफ से मैं मदरसे के प्रिंसिपल साहब और असातिज़ा को उम्मीद दिलाता हूँ जहाँ तक हो सके मेरे बस में जो भी सहूलत रहेंगी इंशाल्लाह मैं मदरसे को भरपूर ताउन करूँगा। आंध्र प्रदेश में चंद दिन कबल रियासत के 13 अजला के लिए ZP चेयरमैन का इंतखाब अमल में आया। अफसोस की बात है कि ZP चेयरमैन के इंतखाब में तमाम तबकात को नुमाइंदगी दी गई मगर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। SDPI ने जगन हुकूमत के कामकाज पर सवाल उठाया है। SDPI ने जगन हुकूमत से मुसलमानों के साथ भी इंसाफ का मुतालबा किया है। प्रदेश की जानिब से 13 डिस्ट्रिक्टों का ZP चेयरमैनशिप का जो अनाउंसमेंट हुआ है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसमें एक भी मुसलमान नहीं है, जबकि 6 BC हैं, 2 SC हैं और 4 OC हैं और 1 ST है और 4 OC में 4 के 4 रेड्डी कैस्ट के रहने वाले हैं। हम हुकूमत से एक सवाल करते हैं, ये यहाँ की गवर्नमेंट बनने से पहले जो वादे बराबरी के YS जगन मोहन रेड्डी साहब मुसलमानों के साथ करे थे, क्या वो भूल रहे हैं? 4 रेड्डी को देने के बजाय उसमें से ये कि आप 2 मुसलमान को दे सकते थे। जहां पर थिक पॉपुलेशन है मुसलमानों का, उस डिस्ट्रिक्ट को देकर आप मुसलमानों के साथ इंसाफ कर सकते थे।
खैर, अभी जो आने वाले दिनों में सारे के सारे मिनिस्टर्स को चेंज करने का जो एक फैसला है हमारे वजीर आला जनाब वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब का, बहुत अच्छा फैसला है। नए लोगों को खिदमत करने का मौका देना चाहिए, मगर यहाँ के सारी रियासत के मुसलमान और बिलखुसूस एसडीपीआई आपसे एक रिक्वेस्ट करती है, आपसे डिमांड करती है कि आने वाले दिनों में ये रिमेनिंग टर्म के लिए मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटी वेलफेयर के साथ में 1 या 2 मुसलमानों को मौका देकर मिनिस्ट्री का आप मुसलमानों के साथ भी इंसाफ करना है। तेलंगाना के जिला वारंगल में 7वें ओपन नेशनल एथलीट चैंपियनशिप मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले एन कुमार को कर्नूल में तहनीत पेश की गई। कर्नूल के रुकन राज्यसभा टी.जी. वेंकटेश ने 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले एन कुमार को मुबारकबाद दी और तहनीत पेश की। एन कुमार ने 100 मीटर का फासला सिर्फ 10 सेकंड में मुकम्मल किया था। यह रिकॉर्ड हिंदुस्तान का दूसरा बड़ा रिकॉर्ड है। इससे कबल ओडिशा के एक खिलाड़ी ने 100 मीटर का फासला 10.26 सेकंड में पूरा किया था। पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले छोटी हो, पर जब न्यूज 18 के स्टेज पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा मुल्क इन्हें ही देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सब के सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। और अब वही स्टेज दोबारा तैयार है ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे मुल्क से मिलवाने के लिए। तो फिर अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस को, तो फिर रजिस्टर कीजिए news18.com/younggenius पर या बायजूस ऐप डाउनलोड करके जानिए जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 न्यूज 18 की